There. Yay! Good job. Good job. Yeah. What's up everyone, welcome to another video. My lens has been licked off by my puppy, so that's why I was like just rubbing it off. Anyway, welcome to another video. This is my office. देखो मेरा ऑफिस का हालत पहले मैं आपको ना एक्चुअली एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो मैंने ऑफिस रिनोवेट किया था तो ऐसे दिखता था और अभी पूरा पपी की वजह से एकदम कचरा कचरा हो गया है. Anyway, अब बजे है 9:50. मेरी मीटिंग्स अभी के लिए ख़त्म हो चुकी है. अभी दूसरी मीटिंग है 11:30 बजे, तो मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है. तो मैं जा रहा हूँ मेरे कोवर्कर के पास. आपको बाद में बताता हूँ क्यों. ओके तो मेरा जो कोवर्कर है ही इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी एंड ही मेक्स ऑसम कॉफ़ी. वेरी न्यू रेसिपी उसने ट्राई की, मैक्सिकन मोका. तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे कॉफ़ी कितनी पसंद है और जो लोग नए हैं उनको बताता हूँ कि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है. तो उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला कि भाई मैंने बहुत नई एक रेसिपी ट्राई की है मैक्सिकन मोका, तेरे को आके ट्राई करना ही पड़ेगा. तो मैं जा रहा हूँ उसके यहाँ पे एक कॉफ़ी ट्राई करने के लिए और मेरे को थोड़ा बहुत काम भी है तो वो भी ख़त्म कर लूँगा. मेरी जॉब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब मैं कभी भी 1-2 घंटे का ब्रेक चाहिए मैं ले सकता हूँ और वो 1-2 घंटे मैं बाद में रात को कवर कर सकता हूँ. एज़ लॉन्ग एज़ आप अपना जो काम दिया गया है वो काम ख़त्म करते हो, फिर चाहे आप रात को 2 बजे ख़त्म करो, सुबह 6 बजे करो या 9 से 5 काम करो, फ़र्क नहीं पड़ता. एज़ लॉन्ग एज़ काम ख़त्म कर सकते हो. ये जो घर है वो मेरे कोवर्कर का है, उसका नाम एडम है. वो 22 साल का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है. बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सिर्फ वो नाम के लिए है, वो एक्चुअल में रियल एस्टेट इन्वेस्टर है. उसने 3 घर ऑलरेडी खरीद चुका है. वो सारे घर एयरबीएनबी पे रेंट करता है और चौथा घर खरीद रहा है वो. हम दोनों शायद साथ में खरीदने वाले हैं एंड रेंटल इनकम के लिए. तो देखते, थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में. In that meeting. Yeah. Adam, you want to say hi to my audience? That is so cool. That is hard. That's the Mexican mocha for me. Alright, so that's his home. That's his home. That's his home. And there's one more. And that's also a tiny guest room. Before the video, I was telling them how smart. I would have got dressed if I knew you were doing this. Could have put on a suit. Oh, this is good. We're gonna take a look at his new house. Huh? I'm just talking to camera, saying that we're gonna take a look at your new house. My dad sent me a check. Yeah, And look who it's from. this is the new house. When did you close on this house? The 9th of June. Just a month ago. Yeah, he left. He texted me and said thanks for everything, so I shouldn't be left. But Oh, okay, got it. Wow, this is nice and fancy. How much did you get this house for? 400. 400,000. Yeah. Nice. So that's the hall. That's the dining area. And then this is the kitchen. Bedrooms that way. The bathroom. And then, oh, 2 bedrooms. nice size bedroom. The closet is in there. And then there's a master bedroom. And assuming this is a
Oh wow, TV. PG&E that was like $350 last month on this house. Oh no. There's this bedroom here that's interesting. It's all like all wood sides. So it is 3 bedroom. Oh, okay. 2 bedroom, 1 bath. Wow, this is like a unique one. Yeah, we can go back. You want to see the sketchy basement? Yeah. Wow, look at this. Is there a light or no? Oh. The secret. Whoa. Are you gonna do something for this one? Maybe if I got time and money. Yeah. This is cool. I wish there was a little bit more height. Little, yeah, 6 more inches. Anyway. It's like a basement. I've never been in a basement before. This is very cool. Yeah, this is my first time. Like you could set up your like TV room or something like that. Yeah, a lot of them people use them for media centers or something. Yeah. Nice. Backyard. Well, but I mean, I put that fence there and took all that back. That's your house over there as well. So you just, okay, got it. Okay. Then you're building this one. It's gonna be 1 bed or studio? It's a studio. Nice. So I just got all the drywall up. I still got some taping to do, but there's gonna be a bathroom in here. Shower, vanity, toilet. And you will put this one as well on Airbnb? Yeah. So this was the whole thing there. Got it. But I took down the fence. I took all that. Nice. I want to move these 2 sheds to that back fence. See you later. Good. Talk to you. Alright, so that was my friend and co-worker. You saw his house. आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट मॉडल समझाता हूँ. तो उसने ये नया घर अभी जून में ख़रीदा. उसने मेरे को पूछा था कि हम दोनों साथ में पार्टनरशिप में ख़रीदे, बट अभी मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना था क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोग ले ऑफ हो रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है. तो मैंने बोला कि नहीं, बट तो उसने खुद ने जाके ख़रीदा है. और ये लोन पे लिया है उसने खुद ने. उसने बोला कि 400,000 का घर है, विच इज़ 2 crore 80 lakhs का घर है. मतलब लगभग 3 करोड़ हो जाता है पूरा सब कुछ मिला के. तो 3 करोड़ का उसने लोन लिया है. उसमें 5% डाउन पेमेंट भरना पड़ता है. यहाँ पे 5% डाउन पेमेंट के बाद मंथली जो पेमेंट है, मॉर्गेज का जो पेमेंट होता है एवरी मंथ, वो $2,000 के आसपास है. $2,000 मतलब 1,50,000, 1.5 लाख के आसपास उसका मंथली पेमेंट है. अब वो क्या करता है, ये सारे जो घर है वो एयरबीएनबी पे डाल दिए. उसने मेरे को अभी जस्ट बताया कि उसकी एक घर की जो इनकम आती है 4,20,000. तो अगर आप कैलकुलेशन करो, 1.5 लाख का मॉर्गेज पेमेंट है और 4,20,000 वो कमाता है. तो मतलब मुनाफा हो गया उसका टोटल 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास. इट्स 10:44 टाइम फॉर माई मीटिंग. 15 मिनट में मेरी मीटिंग है, तो घर पे जाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ. 10:55 राइट ऑन टाइम. So yesterday was a code free, so it's now 3 weeks of regression. Okay, मीटिंग जस्ट ख़त्म हुई. अब ब्रूनो हमारा जो डॉग है उसके आँख में थोड़ा सा छोटा सा इन्फेक्शन है, तो हमको ड्रॉप्स डालने बोले हैं. तो हम लोग अभी ड्रॉप्स डालेंगे और आपको दिखाता हूँ कि ड्रॉप कैसे डालते हैं डॉग के आँख में. ये जो बॉटल है इसके अंदर ड्रॉप्स है और वो केटलिन के ऑफिस के अंदर है. You ready, buddy? You ready? What is it? What is it? Look at him, so cute. You're so cute. You're so cute. Yeah. You got the hiccups. तो ये आई ड्रॉप्स है. अब उसकी आँख में डालने वाले हैं हम लोग. 1, 2, 3. Good job! Good job! Yeah. Bruno has his own YouTube channel, so go and subscribe if you haven't subscribed, where we put his lot of fun stuff videos. Right, Bruno? Right? Yeah. What was that? I stole a kiss. I stole a kiss. मस्त जोरदार एक ट्रेनिंग सेशन किया ब्रूनो के साथ. उसके चैनल पे अपलोड हो जाएगा वो ट्रेनिंग सेशन. अब आप
आपको थोड़ा डिटेल में रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया रियल एस्टेट के बारे में कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, 5% डाउन करते हैं और फिर भाड़े पे डालते हैं। तो आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत इजी है, सब लोग क्यों नहीं करते? तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे वार्निंग, डिस्क्लेमर और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इतना आसान भी नहीं है। अब बताता हूँ, दो चीज़ें होती है, एक रेंटल, लॉन्ग टर्म रेंटल होता है और एक शॉर्ट टर्म रेंटल होता है। लॉन्ग टर्म रेंटल मतलब 1 साल का पूरा भाड़ा डिसाइड हो जाता है, या 2 साल का या 3 साल का, डिपेंडिंग ऑन ओनर कि उनको कितने साल का लॉन्ग टर्म रेंटल करना है। दूसरा वाला है, और जो एडम करता है, वो एयरबीएनबी है, उसको शॉर्ट टर्म रेंटल बोलते हैं। एयरबीएनबी अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली एक ऐप है जहाँ पे आप अपना घर भाड़े पे डाल सकते हो और लोग रात को बुक कर सकते हैं, 1 रात के लिए बुक कर सकते हैं, 2 रात के लिए बुक कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए बुक कर सकते हैं, 1 महीने के लिए भी बुक कर सकते हैं अगर उनको करना है। तो बेसिकली वो होटल की तरह ट्रीट होता है। तो आप जैसे होटल में चेक इन करते हो वैसे चेक इन करो, सेम होटल का सिस्टम रहता है, बट आपको एक पूरा घर की फैसिलिटी मिलती है। बहुत ज़्यादा धूप आ रही है तो मैं उसको अंदर जाके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ दोनों के फ़ायदे और नुकसान। अब आपको लॉन्ग टर्म रेंटल और शॉर्ट टर्म रेंटल के फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। तो लॉन्ग टर्म रेंटल का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सिक्योरिटी, और आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है क्योंकि 1 साल तक आपको लॉक है, आपका भाड़ा पता ही है, आपको हर महीने भाड़ा आएगा। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी जो इनकम है, एक बार आपने भाड़ा सेट कर दिया फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वही भाड़ा आपको हर महीने मिलेगा। बट फिर भी उसमें प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल जो एडम का घर है, जो 1.5 लाख का उसको लोन पेमेंट करनी है, उस वही सेम घर अगर उसको लॉन्ग टर्म भाड़े के लिए देनी पड़ती है तो वो उसका रफली अबाउट 2 लाख या 2.5 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख मिलेगा। उसका मीनिंग ये होता है कि वो मैक्सिमम 1 लाख का प्रॉफिट उसको मिलता है लॉन्ग टर्म रेंटल के लिए। तो मान लो कि उसने 1 साल का लिया है तो हर महीने वो 1 लाख का प्रॉफिट, मतलब 12 लाख का प्रॉफिट होगा उसके लोन पेमेंट के बाद। तो उसको कुछ भी लोन पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ इनिशियल डाउन पेमेंट लेना है, घर को सेट करना है और भाड़े पे दे देना है। तो और उसके बाद वो जो भाड़े के पैसे से ही उसका लोन पेमेंट होगा और 12 लाख की कमाई होगी। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल की। सबसे बड़ा फायदा शॉर्ट टर्म रेंटल का होता है पैसे आप ज़्यादा कमा सकते हो क्योंकि उसमें कोई मंथली पेमेंट नहीं है या ईयरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो 1 रात के हिसाब से चार्ज करते हैं, पर नाइट $200। मान लो कि वो $200 चार्ज करता है, मतलब 14,000 पर नाइट मिलेगा ही मिलेगा। अगर पूरे के पूरे मंथ किसी ने बुक किया है एवरी सिंगल नाइट तो 15,000 के हिसाब से आप गिन लो 4.5 लाख के आसपास वो कमाई हो सकती है। तो 4.5 लाख को कैलकुलेट करो आप, 1.5 लाख जो है वो मंथली पेमेंट है और 4.5 लाख उसकी इनकम है, मतलब बचते हैं प्रॉफिट जो है वो 3 लाख का प्रॉफिट होता है। शॉर्ट टर्म जो रेंटल होता है उसमें आपको खुद से लाइट बिल भरना पड़ता है। अगर एवरी नाइट बुकिंग है तो दूसरे दिन आपको पूरा घर साफ करना पड़ेगा, जो टॉवल्स है सब नए डालने पड़ेंगे, जो बेडशीट्स है वो भी साफ वापस से सब नया धो के वापस आपको डालना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा काम और मेहनत लगता है। आप क्लीनर को हायर कर सकते हो, यहाँ पे जो क्लीनर का भाव है $15 के हिसाब से मिलता है, $15 1 घंटे का मिलता है। मिनिमम 1 से 2 घंटा लगता है पूरा घर को क्लीन करने के लिए। तो मान लो कि $30 1 दिन के लगते हैं, तो 30 दिन के लिए अगर आपने क्लीनर को हायर किया है तो $900 उधर चले जाते हैं। 3 लाख में से 50,000 सिर्फ क्लीनर की सैलरी होती है। अब बात करते हैं लाइट बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, वाटर बिल, गार्बेज बिल, वो सब मिला के लगभग $500 से $600 का बिल होता है। मतलब समझ लो $600 मतलब और 50,000, तो 3 लाख में से 50,000 चले गए, बचते हैं 2 लाख। मतलब शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट है 2 लाख, लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट है 1 लाख। अब शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा नुकसान या डिसएडवांटेज ये है कि आपको गारंटी नहीं है कि कोई हर रात बुक करेगा कि नहीं। मार्च और अप्रैल में एडम को बिल्कुल भी बुकिंग नहीं मिल रही थी और बहुत सारे लोग अमेरिका में लॉन्ग टर्म प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क कम है और एक बार पैसे सेट कर दिए आपका पेमेंट होते जाएगा। मतलब लोन की पेमेंट तो हो ही रही है, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल रहा है और आपकी प्रॉपर्टी भी बन रही है। शॉर्ट टर्म में आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और उसको आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, मेंटेन हमेशा करना पड़ता है। अब
बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की कि भाई अगर इतना इजी है तो लोग तो घर खरीद लेंगे और भाड़े पे देते जाएंगे, तो ये तो सब लोग को करना चाहिए, क्यों नहीं करते लोग सब। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है डाउन पेमेंट। अब आपको बताता हूँ कि ये जो घर है वो 3 करोड़ का घर है, ये मेरा घर है, और एडम ने जो खरीदा वो भी 3 करोड़ का है। तो जब आप पर्सनल घर खरीदते हो, मतलब कि आप उसमें रहने वाले हो, तो पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उस पर 5% मिनिमम आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है। समटाइम्स सम स्टेट्स में 3% भी अलाउ करते हैं, सम स्टेट्स में 1.5% भी अलाउ करते हैं। तो 3 करोड़ का 5% होता है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख हो गई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए। अगर यही सेम चीज मेरे को नया घर खरीदना है और वो भाड़े के पे में डालने वाला हो, तो उस पर 20% की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब सेम जो 3 करोड़ का घर है वो उसके लिए आपको 60 लाख रुपए जमा करके डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है और इतना पैसा कोई किसी के पास इतने जल्दी से आता नहीं है, तो इसलिए लोग रेंटल पे इतना जल्दी कर नहीं सकते। अब बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, वो कभी आपको दूसरे टाइम बताऊंगा, या जब मैं सेकंड घर ले लूंगा तब आपको बताऊंगा कि वो जुगाड़ मैंने कैसे किया। दैट इज इट फॉर दिस वन। हम लोग अभी 2 घर ढूंढ रहे हैं। एक मैं एडम के साथ पार्टनरशिप में लेने के लिए सोच रहा हूँ, और दूसरा जो खुद का रेंटल प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ। तो दोनों भी जब जाऊंगा तो आपको लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूँ घर लेने के बारे में। बहुत कुछ आपको सिखाना है। पर्सनल फाइनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब करो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारा सिखाना है आपको। और लाइक करो ये वीडियो को अगर आपने ऑलरेडी लाइक नहीं किया। और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप हसलिंग। हंसते रहो और मेहनत करते रहो।